India has won the T20 World Cup, and now it's time to focus on the Olympics. While the whole country will be watching the athlete performances, something special has happened for Bihar. After a long wait, an athlete from Bihar, Ms. Shreyasi Singh, who is also an MLA, has qualified for the Olympics in trap shooting. This is a proud moment for everyone in Bihar, especially for IPS officer and DG of Bihar State Sports Authority, Mr. Ravindran Shankaran, who has worked hard to improve the sports in the state. Although he was preparing for 2028 Olympics, Mrs. Singh's selection came as a pleasant surprise for everybody. Hello and welcome. This is Pallavi, and you are watching Indian Masterminds. Today, I am with Mr. Ravindran to discuss how this achievement will impact the future of sports in Bihar. Obviously, we'll talk about Shreyasi Singh and everything. Before that, I really want to congratulate you because the thing we met recently and what I saw at BSSA, like Patliputra complex, it was beyond my belief. I will tell you that when I interviewed you or I was seeing, the numbers that Bihar is doing this and that, still it was in the paper, but when I witnessed it like in with my own eyes, it was surely, matlab, it was unbelievable. I cannot explain. So many congratulations to you for what you have done for sports in Bihar. Thank I you. want to ask you कि वो रोज का माहौल होता है या it was just because of Bihar women, जो अभी कबड्डी लीग हुई BKPL, so it was because of that or it's a regular daily thing? नहीं, वो रोज का माहौल है। अच्छा। या आप खास करके शाम के वक्त यदि आते हैं पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वो इतना लाइवली लगता है और जाने का मन नहीं करता है मेरे को। मतलब इतना बच्चे हर गेम खेलते रहता है, वॉलीबॉल से पकड़ा, कबड्डी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, बैडमिंटन, टीटी, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, मतलब आर्चरी, इतना बच्चे हैं और उनको छोड़ने के लिए पेरेंट्स भी आते हैं, तो माहौल बनी रहती है। तो और यंगस्टर्स के बीच में रहने का वो एक फीलिंग वो अलग है। राइट। आई ट्रूली मैंने सबको एक्चुअली व्हेन आई वेंट बैक होम आई टोल्ड एवरीबडी कि एक्चुअली देयर इज समथिंग हैपनिंग इन बिहार स्पोर्ट्स, इट्स नॉट ओनली इन द पेपर, इट्स एक्चुअली हैपनिंग एंड एनीबडी हु इज फैन ऑफ स्पोर्ट्स शुड विजिट देयर, और जो भी जिनको अपने बच्चे को लेके जाना है वॉट एवर, बट इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग यू हैव डन. So before, like, we'll talk about various things whatever you have achieved, but before that I wanted to understand from you, like, aisa nahi hai that Bihar lacks in talent. We are kind of excelling in higher studies, competitive examination, UPSC mein to aise log bolte hi hain that Bihari has something when it comes to UPSC CSC, but what was the reason for them, for us actually, to not produce same result in sports as well? See, this is not one man's result. Actually, there was a team effort with the backing of the government of Bihar. So what I mean by team effort is the Bihar State Sports Authority, the Department of Sports, all the sports associations, all the sports lovers, district sports officers, the media, we all collaborated, so nicely, and we came together, and with the strong support of the government, we could do this. Sir, I'm sorry to interrupt you. Yeah. Maybe I think you didn't get my question. Actually, you are talking about right now. What I was asking is Bihar has talent, but still we were excelling in education. We are still doing it. But why we lagged in sports till now? I wanted to understand that reason. If you have analyzed कि क्या problem आ रही थी कि बिहार पीछे होता ही चला जा रहा था. Now it is obviously gaining momentum, but in the past decades we were somewhat, थोड़ा उसको बोल सकते हैं कि बिहार को लोग स्पोर्ट्स में एटलीस्ट दे वर नॉट काउंटिंग ऑन बिहार. See, if you ask me, my honest answer would be, there are several priorities to the government. So the government of Bihar had priorities
for the past 20-25 years to build the infrastructure like road, electricity, water, and to develop education system, health system. So sports priority list में थोड़ा सा नीचे था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ही ध्यान नहीं था, ध्यान था। लेकिन देखिए, जब तक बेसिक चीजेस, ये सब मैंने जो बताया, बेसिक चीज नहीं होगा तो खेल में भी वो सब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत है। राइट। तो सरकार धीरे धीरे सारा चीज डेवलप किए हैं, एंड देन when the time came, when the right time came, सबके लिए समय आता है। तो when the right time came, everything fell in place and sports also got its priority. So that is why. So it's been more than 2 years since you took the charge as DG BSSA. Okay, more than 2 years. Yes. Yeah. So now when you look back, how has the journey been till now? Right? It's obviously it's ongoing, but still. Yeah. I would humbly state that it's just the beginning. We started with the mission that we should develop sports in the state in such a way that when Olympics happens in 2028, Los Angeles, at least one boy or girl from Bihar should be part of the Indian team and go for Olympics. That was our mission. And तो एक लक्ष्य रख दिया था हम लोगों ने, और बिहार का एक पॉपुलर, क्या बोलते हैं, पॉपुलरली ये बोला जाता है कि यदि कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो सत्तू बांध के निकल गया, राइट। तो हम लोग सब मिलके सत्तू बांध के निकल गए, तो उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए या पहुंचने के लिए। तो लेकिन बहुत खुशी की बात यह है कि हमने 2028 का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन श्रेयसी सिंह के माध्यम से हम 2024 में ही उसको हासिल कर लिए थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एंड इस 2 साल का जर्नी वाज a mixture of obstacles and happiness and creating a platform for all the sports persons of Bihar to exhibit their untapped talent. तो ये मैंने देखा, ये मेरा जर्नी रहा 2 साल से। Right. I wanted to ask you this, कि you have set your target to 2028 and you told me earlier also, right now also you mentioned कि एक लड़का एक लड़की भेजना था। अभी तो एक लड़का एक लड़की जा रही है 2024 में। तो अब टारगेट, व्हाट्स योर टारगेट फॉर 2028 ओलंपिक्स नाउ? नहीं, 2028 में भी वही टारगेट रहेगा मेरा। एक ही? एक नहीं, मतलब एटलीस्ट 2 should be part of the Indian team. Right. But 2036 में जब ओलंपिक्स इंडिया में होगा, मतलब अभी बात चल रही है, सब लोग सुन रहे हैं 2036 में ओलंपिक्स करने के लिए इंडिया बिड कर रही है। तो 2036 में जब ओलंपिक्स होगा इंडिया में, तो उस समय मुझे पूरा उम्मीद है कि इंडियन टीम में बहुत ज्यादा बिहार का रिप्रेजेंटेशन रहेगा उस ओलंपिक्स में। ये मेरा अपना उम्मीद है। राइट सर, अभी तो ऐसे मुझे और भी बातें करनी है, बट पहले थोड़ा श्रेयसी सिंह के ऊपर ही बात करते हैं। Like when I met you, you were kind of sure you will get one qualification in Paralympics. You were kind of मतलब 90-95% sure. You weren't sure about Olympics में हम जा रहे नहीं जा रहे. But when her selection came, how was your feeling? तो अगर उसको if you can मतलब take me through the details of it was obviously, it might be for as a pleasant surprise for you, for your team, and for obviously each and every Bihari, but how did how was your feeling? जब मुझे पता चला तो फिर श्रेयसी सिंह से ही सबसे पहले फोन से बात हुई। हम अपना खुशी उनको शेयर किए और उनको कंग्रेचुलेट किए, एंड शी वाज आल्सो
way too happy. And उस happiness का compare मैं नहीं कर सकता हूँ किसी happiness के साथ, because एक था कि हाँ, हमने जो सोचा था वो मिशन लगभग हम अकम्प्लिश कर चुके हैं. और यू नो जैसे कि मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा. जब मैं यूपीएससी एग्जाम लिख रहा था आईपीएस बनने के लिए, तो जब तक वो रिजल्ट नहीं आया तब तक मन में बहुत एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस और बहुत सारा इमोशंस चलते रहता था माइंड में. राइट. जब रिजल्ट आ गया और पता चल गया मैं पास हो गया हूँ, आईपीएस बन गया हूँ, एकदम शांत हो गए थे. मन एकदम शांत हो गया. कुछ बोलने का, कुछ सोचने का, कुछ था ही नहीं. वैसे फीलिंग था मेरे को, वैसे फीलिंग था. मतलब एकदम शांत हो गए थे, सोचने लग गए थे. बस मैं उससे ज्यादा मैं I don't know how to explain that feeling. Yeah. I totally understand, sir. Now I wanted to understand from you कि इस selection का what do you think will be on impact on other players who are kind of not only in rifle or shooting but in other games also. Selection का कितना impact होने वाला है? Just tell me बड़ा about. इम्पैक्ट होगा, बहुत बहुत बड़ा. अंडरस्टैंड, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा. बिकॉज ये सबकी आंखों के सामने एक लड़की, एक स्पोर्ट्स पर्सन बिहार से ओलंपिक्स खेलने जा रही है. that will set a trend in Bihar now. And सब बहुत लोग सामने आएंगे, अपने बेटी को भेजेंगे खेलने के लिए और बेटा को भेजेंगे खेलने के लिए. एंड this will start a sports revolution, sports movement in Bihar. हिंदी में बोलेंगे तो खेल आंदोलन फिर से शुरू होगा बिहार में, ये मेरे मानना है. Right. And you are also gearing up. Actually, you are sure for our selection, at least one qualification in Paralympics, because he won the gold medal in Asian Games. If Asian Games. Yeah. Tell me about him and how you are, how the preparation is going. शैलेश पर मेरे को बहुत भरोसा है, विश्वास है. और अभी बिहार सरकार के द्वारा मेडल लाओ नौकरी पाओ की स्कीम के तहत जैसे वो एशियन गेम्स में मेडल लेके आए, तुरंत उनको गेजेटेड ऑफिसर का रैंक पोस्टिंग भी मिल गया, नौकरी मिल गया. उसके बाद उन्हें हम लोग हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग के लिए गुजरात भेज दिए थे. तो अच्छे से उनका ट्रेनिंग चल रहा है. मेरा बात होती है उनसे हर हफ्ते और हम संपर्क में हैं. मेरा शैलेश से उम्मीद है ओलंपिक्स तो जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है, मन बता रहा है, मतलब समथिंग टेल्स मी, अंदर का गट फीलिंग है, वो मेडल लेके आएगा. ये मुझे लगता है ऐसा. Every time you talk about him, last time also your eyes, starts sparkling. ऐसा लगता है कि it's something like personal. And sir, after you took charge as the DG, Bihar, especially Bihar, has been mostly focusing on non-traditional games, be it rugby, wushu, or sepak takra, or jiu-jitsu. So I wanted to know, is there any special strategy, or you think कि मतलब the Bihari girls and boys are more talented in those sports? What's the reason behind that? नहीं, simple reason. It's a strategical approach. All traditional sports में, whether it is kabaddi, volleyball, basketball, कोई भी traditional sports आप ले लीजिए, बाकी सब states बहुत हाई लेवल पर पहुंच गया है. अब हमें सरकार को रिजल्ट दिखाना है और हमें बच्चे लोगों को आगे बढ़ाना है और स्पोर्ट्स को डेवलप करना है. तो strategically we chose certain sports which are part of Asian Games, Olympics and Commonwealth, and which are relatively less competitive and relatively not so popular, and many other states have not picked up that game. So वैसे गेम्स को हम लोगों ने सेलेक्ट किया और साथ साथ वो सब गेम में हमारे बच्चे में हुनर भी था, टैलेंट भी था. तो दैट इज व्हाई वी ऑप्टेड. सी, मेरा एक सिद्धांत है, ये मेडल इज ए मेडल. एक
चाहे वो कबड्डी से आवे या सेपक टाकरा से आवे, मेडल तो मेडल ही है। मेडल आएंगे तो बिहार का नाम मेडल टैली में ऊपर आएगा। तो वैसे ही हम लोग स्ट्रेटेजाइज किए हैं और ऐसा ऐसा गेम को हम लोग चुने हैं। आप विश्वास करेंगे, तो हम बोलते हैं तो कोई विश्वास ही नहीं करते, लेकिन ये सच है। फेंसिंग, तलवारबाजी, जो यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज बहुत पॉपुलर रहते हैं उसमें। फेंसिंग इतना स्टाइलिश गेम है और इतना महंगा भी है। और फेंसिंग में बिहार का एक बच्चा आकाश लास्ट एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया है इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करके। So nobody believed me, but it happened. It is the truth. Similarly, rugby. जब मैं बोलता हूँ बिहार में हम रग्बी डेवलप कर रहे हैं, रग्बी, then when I tell them नहीं, we are the national champions in women rugby, they said रग्बी और महिलाएं, मतलब nobody believes me, but the fact is Sweta Sahi represented Indian team in the last Asian Games in rugby. So and sepak takra again, दो बच्चे वर्ल्ड चैंपियनशिप चला गया है। तो ये सब गेम्स है, they are also games recognized by the World Federation, and they are part of either Olympics, Commonwealth और Asian Games. So ठीक है भाई। and national games में पहले हम मेडल्स टैली में बिहार का नाम आता ही नहीं था, लेकिन इस बार हम 9 मेडल्स के साथ हम मेडल टैली में आ गए। Right, yeah, बहुत बड़ी बात है। right. Right. अभी you only mentioned कि लोग थोड़ा शॉक हो जाते हैं, रग्बी इंडिया ही नहीं खेलती, बिहार क्या खेलेगा। So I wanted to know from you कि ऐसा कभी हुआ that you selected any boy or girl to play this game after जो talent hunt program है उसके बाद, and then maybe they refuse to play कि this game is not मतलब popular enough कि ऐसा, या their guardian didn't allow you to take them forward. Has that happened any time? देखिए, इसमें हम जरूर एक ऑनेस्ट आंसर बताना चाहूंगा। रग्बी एसोसिएशन का सेक्रेटरी पंकज ज्योति और सेपक टकरा एसोसिएशन का सेक्रेटरी या एंड ऑफिस बेयरर डॉक्टर कर्णेश और फेंसिंग का सेक्रेटरी रमाशंकर, ये लोग पहले से धरती पर ग्रास रूट लेवल पर काम किए हुए थे। लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि उस बच्चे को लॉन्च करने का। तो हमने बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म दिए हैं, जहां कोचिंग कैंप्स कंडक्ट करना, बाहर से कोचेस को बुलाना, बाहर मतलब आउटसाइड द स्टेट एंड आउटसाइड द कंट्री से। जैसे रग्बी के लिए साउथ अफ्रीकन कोचेस आया, श्रीलंकन से कोच आया, तो वैसे, और फेंसिंग के लिए केरला से और कर्नाटका से हम लोगों ने कोचेस बुलाया, वैसे हम लोगों ने किया। सो ऑलरेडी कुछ लोगों ने इस गेम्स पर काम किए हुए थे और इट वाज देयर, जो कहते हैं ना, केक बन चुका था, मैं जाके ऊपर क्रीम लगा के चेरी लगाया था। सो दैट इज व्हाट हैपेंड। राइट। या कभी वही ग्रास रूट पे एक्चुअली यू आर सेइंग कि पीपल वेर अवेयर, मतलब students were playing the game, there were athletes who were interested in rugby, after all these non-traditional games, you are also now focusing on reviving kabaddi. Once it was that Bihar Women Kabaddi League, it was a successful event, and so two things I wanted to ask you: what's the road ahead for kabaddi, especially for women kabaddi in Bihar, and also are you planning this event to be continued in the coming years? Yes, this is just the beginning, first season. So we will have several seasons in coming future, and this will go ahead a long way. And दूसरा हमारा मकसद इस कबड्डी लीग के माध्यम से, मकसद ये था इस कबड्डी लीग के माध्यम से देखना चाह रहे थे कि हमारे बिहार में कबड्डी में कितना बच्चियां हैं, लड़कियां हैं जिनके पास हुनर है, और उस हुनर को एक्सप्रेस करने के लिए या एग्जिबिट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। तो इसलिए एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म दिया गया था उन लोगों को। बिजली चला गया, प्लेटफॉर्म
दिया गया था, या प्लेटफॉर्म दिया गया था, बिकॉज उन लोगों को नंबर ऑफ मैचेस खेलने को भी नहीं मिलता था। तो सिलेक्शन हुआ, सीधा नेशनल चले गए और लीग खेले, लीग में क्वालिफाई हुआ तो हुआ, वरना तो लीग से ही वापस घर आना है। तो इस लीग के माध्यम से हर एक बच्चे को मिनिमम 10-10 मैच खेलने को मौका मिला है, मिनिमम 10-10 मैच। सो दे गॉट ए वंडरफुल एक्सपीरियंस, और हमें भी एक मौका मिला टैलेंट को स्काउट करने के लिए। और इस लीग से हम लोग 90 लोगों से द बेस्ट 30 सेलेक्ट किए हुए हैं। आगे इन लोगों को हम लोग ट्रेनिंग में लगाएंगे। जुलाई 15 से वो ट्रेनिंग कैंप शुरू होने वाला है। हमारा टारगेट है नेशनल चैंपियनशिप में हमको मेडल लेना है और नेशनल गेम्स में मेडल लेना है, और शायद 2036 ओलंपिक्स में कबड्डी जुड़ने वाला है, ये सुनने में आता है। यदि कबड्डी जुड़ गया 2036 ओलंपिक्स में, मेरा उम्मीद है कि बिहार का बच्चियां इंडियन टीम में रह करके 2036 ओलंपिक्स में भाग लेंगे। यही हमारा मिशन है। Right. And any plan for men kabaddi team? मैम एक्चुअली टैलेंट पूल के हिसाब से हम चलते हैं। कबड्डी के मामले में हमारा बेटियां बहुत टैलेंटेड है। Right. जहां बेटा लोगों की बात आता है, बॉयज लोगों की बात आता है, तो वहाँ वॉलीबॉल में बहुत टैलेंट है। तो हमारा अगला कार्यक्रम बिहार बॉयज वॉलीबॉल लीग है। अच्छा। तो बिहार वॉलीबॉल लीग है, वो हम बॉयज के लिए करेंगे। तो जिस गेम में जिनको टैलेंट है उतना ही में मैं कंसंट्रेट करूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट the time, energy and money of the taxpayer. तो strategically move करना मेरे को। Okay. And sir, कोई भी चीज whatever it is, it starts, मतलब जो seed होता है वो स्कूल से आता है। So do you have any plan for developing the attitude towards sports in schools of Bihar? Sure. बिहार सरकार के द्वारा 2 पॉलिसी अभी कैबिनेट के माध्यम से पास किया गया है। एक है हर पंचायत में स्पोर्ट्स क्लब का गठन करना। तो पंचायत लेवल पर जब स्पोर्ट्स क्लब गठन होगा तो आपको गांव-गांव में लोग खेलना शुरू करेंगे और गांव से उठ के ऊपर आएंगे खिलाड़ी, नंबर 1। एंड नंबर 2, हम लोग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम करने जा रहे हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त in 39,000 schools for middle school and high school, जिसमें 60 लाख बच्चे का हम लोग बैटरी टेस्ट कराएंगे और कुछ इवेंट्स का कंपटीशन कराएंगे, और वहां से शुरू करके फिर ब्लॉक लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर स्टेट लेवल पर लेके आएंगे। इसके माध्यम से भी हम लोग टैलेंट आइडेंटिफाई करके उनको आगे बढ़ाएंगे। तो ये सब करने से यूथ मोबिलाइजेशन होगा टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, एंड यूथ्स को सही रास्ते मिलेगा अपने करियर बनाने के लिए। यही हम लोगों का योजना है। Right. Sir, now coming to क्योंकि if you want to do achieve that, you need good teachers, good physical education teacher, if I'm not wrong. But what I have observed, most of them like are not, maybe they are not efficient when it comes to teaching sports or any physical activities. बहुत सारे लोग जिनको मैं जानती हूँ, they are teachers and teaching physical education, but they are not efficient enough. तो do you have, और मतलब do you have, पहले तो कि ये आपके अंडर ही आता है कि to select the teachers और appoint, या वो तो proper education department का है, तो उसको डील करने के लिए do you have any plan? मैम हाल फिलहाल हम लोगों ने कोचेस डेवलपमेंट प्रोग्राम, टेक्निकल ऑफिशियल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, रेफरीज डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए हैं हॉकी में, हॉकी इंडिया के माध्यम से। सो उसमें जो भी हमारा पीटी टीचर्स बीपीएड किए हुए, एमपीएड किए हुए हैं, उन जिनको हॉकी में इंटरेस्ट है या पहले हॉकी खेल चुके हैं, तो उन लोगों को हम लोग डेवलप कर रहे हैं टू बिकम कोचेस, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारा ऐसा टीचर्स को एनआईएस में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में
कोच बनने के लिए हम लोगों ने भेजे हैं एंड बिहार सरकार ने टोटल रीएम्बर्समेंट किए, टोटल स्कॉलरशिप दिए थे उनको। इफ माय स्टैटिस्टिक्स आर करेक्ट, पिछले साल 74 बिहार का बच्चे बच्चियां, मतलब पीटी टीचर्स भी उसमें हैं और बीपीएड्स भी है, एमपीएड्स भी है, वो एनएस कोर्स कंप्लीट करके वापस आए हैं विन विन गेम्स में, तो वो एक है। और थर्ड, हम लोग अभी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण में भी और क्या बोलते हैं विभाग में भी, और खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर्स और हमारा एकलव्य स्पोर्ट्स स्कूल्स में भी बहुत सारे लोगों को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पर हायरिंग बेसिस पर हम लोग लेने जा रहे हैं। So this was Mr. Ravindran Shankaran. I hope you enjoyed listening to him. If you want us to bring to you more such interesting conversation, do not hesitate and please subscribe our channel and press the bell icon to get instant alert. Till then, this is Pallavi signing off. Stay curious and stay informed. Thank you for watching.